In last lecture, what we have completed was about WBCs, that is granulocyte, agranulocyte, RBCs and all. From here onwards, that is lecture number 6, we will continue to the topic which is known as blood platelets, or you can say thrombocytes. These thrombocytes are the fragments of large cells which are called as megakaryocytes, and they are produced in bone marrow. They are produced in bone marrow. They are non-nucleated, round and biconvex cells. The smallest element, these are the smallest element of the blood, which is 2.5 micrometer to 5 micrometer. ठीक है. So the average count in our blood is average count is 2.5 to, actually it is 2.5 to 4.5 lakhs per cubic millimeter, and if this average count decreases, that will lead to a condition which is known as thrombocytopenia. Thrombocytopenia, that means penia means decrease in number. Penia means decrease in number of platelets. Thrombocytopenia, if it decreases from this 2.5 lakhs per cubic millimeter, while increase in number of platelets is known as thrombocytosis. When there is an increase in number above from 4.5 lakhs per cubic millimeter, that will be known as thrombocytosis. And these thrombocytes or blood platelets, they help in formation of clot over the injury. clot कहते हैं जम जाने को. ठीक है. तो जो ब्लड का जम जाना है, इससे हम लोगों को कहीं भी हाथ वगैरह में चोट लगती है तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है, लेकिन उसके बाद वो ब्लड जम जाता है. तो ये जो ब्लड जमने का अमल है वो किसके ज़रिए होता है? ब्लड प्लेटलेट्स और यू कैन से थ्रोम्बोसाइट्स के ज़रिए होता है. कहाँ पर जब जमता कहाँ पर है? वो इंजुरी जहाँ पर होता है. इंजुरी जहाँ पर होगी वहाँ पे ये ब्लड क्लॉट करने का काम करेगा. लेट अस से इन फिगर हियर इट इज़ कोलाजिन फाइबर एंड डैमेज्ड एंडोथेलियम. इट इज़ डैमेज है, ये यहाँ पर डैमेज है, यानी इंजुरी हुआ. सो यहाँ जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं. उसको कहते हैं प्लेटलेट एडिशन. यहाँ पर आके इकट्ठा होना शुरू हो गई. देन दिस प्लेटलेट रिलीजेस रिएक्शन एंड which liberates a chemical which is known as serotonin. And thromboxane. These are the two chemicals which are released by these platelets, and this serotonin contracts the blood vessels. अब वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्लेटलेट जमा हो जाती है. एंड नंबर थर्ड, आप कह सकते हो वहाँ पे देखो स्कार जैसे हम लोगों को कभी लगता है तो थोड़े दिन के बाद वहाँ पे स्कार बन जाता है. ठीक है, निशान बन जाता है. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे प्लेटलेट का एक प्लाग जमा हो जाता है, और यू कैन से थ्रोम्बस. इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस भी कहते हैं. एंड दिस कॉजेस कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. यहाँ पे ब्लड को जमा दिया जाता है वाइल यहाँ पर जब तक रिपेयर का प्रोसेस शुरू रहेगा. सो इफ देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर, this reduction in number of platelet can lead to different types of disorders. That's why this platelet count is very important for normal functioning of body. ठीक है. So next we'll see function of blood. Function of blood, that is distribution, transport, production of antibody. Let's say distribution. Blood क्या क्या distribute कर सकता है? नंबर 1, digested food, energy molecules, ATP वगैरह. ठीक है, एब्सॉर्ब फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम. ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो ब्लड करेगा. नंबर 2, ट्रांसपोर्ट. इट विल ट्रांसपोर्ट हार्मोन, रेस्पिरेटरी गैसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एज यू नो blood contains T cells and B cells, that is T lymphocytes and B lymphocytes, which are involved in synthesis of antibody and secretion of antibody. So this production of antibodies is nothing but a function of blood. Next, thermoregulation, that means it regulates the heat throughout your body. Prevention of water loss, it distributes adequate quantity of water to the all cells and prevents dehydration. तो water को provide करने का काम भी कौन करता है? blood करता है. Protection, it prevents loss of blood by formation of blood clot. अगर ज़्यादा लग गई है, इंजरी हुआ है, तो वो ब्लड जमा देता है. क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या मौजूद है?
प्लेटलेट्स मौजूद है, इसीलिए वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया। फाइगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल सेल्स मोनोसाइट्स विच इंगल्स डाइजेस्ट बैक्टीरिया, अगर किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन को खत्म करने का काम कौन करता है? दीज टू सेल्स, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। दस इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम pathogens, bacteria, viruses, not viruses exactly, but some bacteria and pathogen. It maintains osmotic balance, that means minerals, water, salts वगैरह का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो दैट्स वाई osmotic balance. Now here we will see that how this blood get clot. ठीक है, this blood clotting or you can say coagulation, it is initiated by these platelets. These are initiated by these platelets. Here, ये जो platelet है, ये platelet initiate करेगी. The injured cells releases a substance that attach the platelets. यहाँ पर जो injured cell है, देखो यहाँ पे ये येलो कलर का जो सेल है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, वो एंडोथेलियम सेल यहाँ पे डैमेज्ड है, यहाँ पे टूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये जो सेल, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये डैमेज्ड है? तो ये जो सेल डैमेज हुआ है ये एक तरीके का सब्सटेंस रिलीज करता है जिसकी वजह से जो प्लेटलेट है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती है। दे गैदर एंड स्टिक टू इंजर्ड सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल। यहाँ देखिए, यहाँ पे गैदर हो रहे हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिल गए हैं। द मास ऑफ एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स अलोन में फिजिकल प्लाग। ओके, यहाँ पर जो प्लेटलेट्स जमा हो चुकी हैं वो एक फिजिकल प्लाग क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? ठीक है, यहाँ पर क्यों क्रिएट करेगा? मैंने आपको बताया कि दैट दे रिलीजेस सेरोटोनिन, और यहाँ पे जब सेरोटोनिन रिलीज होता है तो यहाँ पर ब्लड का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ का ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ हो जाए और प्लेटलेट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गैदर हो जाए। ठीक है, so the contact of platelet with the collagen fiber exposed by the injury causes them to disintegrate and releases two substances, that is serotonin and thromboplastin. So these are the two chemicals which are released by these platelets, that is serotonin and thromboplastin, which minimizes the loss of blood from the injuries in two ways. Okay, number one way it's vasoconstriction. Vasoconstriction का मतलब होता है contraction of blood vessels, contraction of blood vessel. And number second way is clot formation. Thromboplastin, a lipoprotein, helps in clot formation. Clot का मतलब होता है जम जाने, जो खून जम जाएगा उसकी वजह से आपका ब्लड वहाँ पर रुक जाएगा। तो these are the two ways by which clotting of blood takes place. ठीक है, but there is a series of reaction which is involved in this clotting of blood, which is given here. Injured tissue मतलब जहाँ पर इंजुरी हुआ है वो टिश्यू क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए यहाँ पे है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम विच इज नोन एज प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, विच इज नोन एज प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। ये एक एंजाइम है। ठीक है, अब इंजर्ड टिश्यू यहाँ से रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ब्लड में तो प्लेटलेट भी है ना, वहाँ पर प्लेटलेट भी मौजूद है, तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो एक तरीके का फैक्टर रिलीज करती हैं जिसको कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। उसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट फैक्टर 3। दिस प्लेटलेट फैक्टर 3 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन also activates prothrombokines. So there are two ways in which this enzyme is going to be active. Number one, first injured tissue releases thromboplastin. This thromboplastin in presence of calcium and protein converts, or you can say activates, an enzyme which is known as prothrombokinase. Same here, second way, blood platelets releases platelet factor 3, which is platelet thromboplastin, and in presence of this blood platelet factor 3, calcium and protein, this prothrombokinase gets active. ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज वहाँ पर हिपैरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन ब्लड को जमने नहीं देता, एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, अगर आपको इंजुरी हुई है
कोई भी जगह पे आपको अगर इंजरी हुई है, अगर वहाँ पर आप हिपैरिन को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तो आपका ब्लड कभी जमेगा नहीं। क्यों? बिकॉज हिपैरिन जो होता है ब्लड को जमने नहीं देता, इसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट इज हिपैरिन। ठीक है, तो आप ये जो एंजाइम है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब न्यूट्रलाइज कर दिया है, दैट मीन्स वहाँ से वो ब्लड के उतने हिस्से से हिपैरिन निकल गया। अब हिपैरिन निकल गया तो ब्लड जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैसे जमेगा देखते हैं। ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन, and this from prothrombin it is again converted into a stable compound which is known as thrombin. Prothrombin is slightly unstable, that's why this prothrombin is converted into thrombin, and this thrombin is again converted into fibrinogen, and from fibrinogen it is converted into fibrin, and this fibrin is responsible for creation of platelet plaque or thrombus, जिसको हम लोग आम ज़बान में कहते हैं ना कि पपड़ी जम गई है, लगने की वजह से वो स्कार आ जाता है चॉकलेटी कलर का। ठीक है, तो वो क्या है, आपका थ्रोम्बस है। क्या है? थ्रोम्बस। ठीक है, तो इन दिस वे देयर इज अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। हियर इन फिगर यू विल सी देयर इज अ इंजुरी। अब यहाँ पर इंजुरी हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इंजुरी हो गया है, तो यहाँ पे देखिए प्लेटलेट इकट्ठा होना शुरू हो गई है। यहाँ से अलग कलर से बता देते हैं, 1 मिनट, ब्लू कलर। ये यहाँ पर अगर आप ब्लू कलर में देखें तो ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है ये है प्लेटलेट। कहाँ पर है? प्लेटलेट जो है इंजुरी के करीब में। किसके करीब में? इंजुरी के करीब में। अब वहाँ पर ये पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगी। इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, ब्लड प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज़ करेंगे, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजिन वगैरह बनेगा। तो ये इस तरीके से पूरा यहाँ पे प्लेक बनता है। यहाँ पे देखिए, अब ये जो प्लेटलेट और जो टिश्यू ने प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया था, अब वहाँ पे प्लेक और थ्रोम्बस बन गया। क्या बन गया है? थ्रोम्बस बन गया है। तो वहाँ पर जो टिश्यू है वो सील्ड हो गया, जो इंजुरी थी वो सील हो गई है बाय द फॉर्मेशन ऑफ this network fibrinogen and fibrin. So in this way there is a clotting of blood takes place. ठीक है।